جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلفراز صاحب اور ان کی مسز. ایئر وائی زندگی کا جو شو ہو رہا تھا 28 اپریل کو بیریا انکلیو اسلام آباد میں, اس کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا ان کے دو مطلب کہ ایویڈنس ہمارے پاس ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سرفراز صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ ایئر وائی کا شو کہاں پہ ہو رہا تھا, آپ لوگ کہاں پہ گئے تھے ان کے شو میں؟ یہ بحریہ انکلیو میں ہو رہا تھا 28 ڈی بلاک میں, اور 28 اپریل کو تقریباً 5 بجے سے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا وہاں پہ, اور 7:45 بجے کے ٹائم. کتنے لوگ شرکت کر رہے تھے؟ شرکت تو میکسیمم 4,000-5,000 لوگ تھے. ٹھیک ہے, آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ واقعہ کیسے ہوا, یا آپ لوگ اس ٹائم کیا کر رہے تھے؟ ہاں جی, واقعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سیٹس پہ. ابھی شو کا آغاز پورے طریقے سے نہیں ہوا تھا, ابھی ہوسٹ بھی نہیں آئی تھی. سٹنگ مینجمنٹ کچھ اس طرح کی تھی کہ سب ایک سیٹ دوسرے کے ساتھ کنیکٹ تھی, اور آلموسٹ فل ہو چکی تھی سیٹس. جس وقت ہم لوگ گئے تو اینڈ کی رو بچی ہوئی تھی, ابھی بھی لوگ آ رہے تھے. تو آپ اپنے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیں گے کہ واقعہ کیسے ہوا, مطلب کہ کیا آپ کو بتایا گیا, کیوں ہوا ہے یہ؟ جس وقت ہم وہاں جا کے پہنچے تو تقریباً آلموسٹ 4,000 لوگوں کی تعداد تھی جو کہ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اچانک میرے خیال سے جہاں تک یہ حادثہ ہوا ہے تو ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. زمین کچی تھی, انہوں نے جو پلر لگائے ہوئے تھے جس پہ لائک اسٹیڈیم, جس طرح سے اسٹیڈیم ہوتا ہے, اور اس طرح سے انہوں نے اس کی ہائٹ تقریباً میکسیمم 100 میٹر تو ہوئی ہوگی. جب ہم لوگ وہاں بیٹھ گئے تو اچانک ایک چھوٹا سا جھٹکا ہوا ہے, اور اس جھٹکے کے بعد انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا کہ یہ ایرتھ کویک ہے. لیکن میں نے سامنے والی بلڈنگ پہ جب دیکھا تو وہ ایرتھ کویک کی کوئی جھٹکا ایسا نہیں تھا. مجھے لگا کہ یہ کوئی اسٹیج کا پرابلم ہے یا پھر کوئی سیٹس کا مسئلہ ہے. ہم نے اپنی پوزیشن سنبھالی, ہم نے اپنے بچوں کے بازو پکڑے, اور تقریباً بس اتنی نوبت آئی کہ ہم نے کرنا پڑا, اور اس کے بعد ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے. ہم زمین پہ پڑے ہوئے تھے سارے, اور جو ہی ہم زمین پہ پڑے جا کے جب وہ گر گئی تو انہوں نے فوراً لائٹس آف کر دی. انہوں نے اتنا موقع نہیں دیا کہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنے آپ کو وہ سنبھال سکے, یا تو پھر انہوں نے کوئی ایسا کوئی سسٹم کرنا چاہیے تھا. لائٹ تو کم از کم وہ آن رکھتے تھے, کم از کم ہم لوگ اٹھ کے ایزیلی ہم چیئر سے باہر تو جا سکتے. وہاں ہم اپنی مدد آپ ہی, جو کچھ ہوا ہے اپنی مدد آپ ہی, ہم وہاں سے باہر آئے. تو بھائی یہ سارے وہاں سچویشن تھی. اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لائٹس ٹوٹل آف تھیں, اور لوگوں نے بگم زڑوں ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے. لوگ اپنی گاڑیاں انہوں نے نکالی ہیں, بس وہ نکلنا شروع ہو گئے. میرے اپنے بچوں کی یہ کنڈیشن تھی کہ ان کے سانس بند ہو گئے تھے بالکل, اور بڑی مشکل سے میں اپنی گاڑی تک پہنچا ہوں. یہ میری لیگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریکچر ہوا ہے. یہ میری آج تقریباً اس کو 7 دن ہو گئے, 5-6 دن ہو گئے, اور اس کا پلستر اترے ہوئے آج دوسرا دن ہے. تو یہ سچویشن ہے, میں چل نہیں سکتا ہوں صحیح طریقے سے. بہرحال ہمیں صحیح طریقے سے ریسکیو نہ وہاں کی ایئر وائی کی ٹیم نے کیا ہے, اور نہ ہی ہمیں بحریہ ٹاؤن والی کسی ٹیم نے کیا ہے, یا پھر کوئی ہمیں ایمبولینس ہو. جس وقت ہم ہاسپٹل پہنچے کہ تقریباً 2 منٹ پہلے ایمبولینس نے وہاں جانا شروع کی ہے. یہ تقریباً ساری سچویشن تھی وہاں کی. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ زخمی کو کہاں لایا گیا, یا آپ لوگ خود کس ہاسپٹل میں گئے, اور ان اسپتال میں زخمیوں کی کیا صورتحال تھی؟ اچھا, ہم لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت آئے, اور بہت ہی مشکل سے آئے. آدھے راستے میں آ کے ہسبینڈ میرے بے ہوش ہو چکے تھے. وہاں سے ہم نے کال کی, کیونکہ موبائل فون تو ہمارے کھو چکے تھے ادھر, ساری چیزیں جو بھی کچھ ہمارے پاس تھا, والٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب ادھر تھا. بہت مشکل سے جان بچا کے ہم لوگ پہنچے. وہاں پہ ایک تندور والے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بلایا, ان کا نمبر لیا. وہاں سے پھر میں نے بھائی کو کال کی, پھر بھائی وہاں پہنچے, پھر وہ ڈرائیو کر کے ہمیں پولی کلینک لے کے گئے. پولی کلینک جب ہم پہنچے, وہاں میرے خیال میں سب سے پہلا پیشنٹ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں ہوں گی, کیونکہ سب سے پہلے ہم لوگ بھاگے تھے وہاں سے اپنی جانیں بچا کے بچوں کو لے کے, کیونکہ میرے چھوٹے بیٹے کا سانس بالکل بند ہوا. تو جب ہم پہنچے تو اس وقت بھی جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ پہنچے ہوئے تھے, تقریباً لگ بھگ 150 لوگ وہاں پہ تھے,
जो जिनका वहाँ पे मतलब ये लेग फ्रैक्चर हुई हुई थी और सारे पेशेंट रो रहे और इस तरह। और वहाँ की ये सूरत हालत में मुझे इंतहाई दुख है ARY पे, इतना बड़ा चैनल है, इतनी इसकी बातें हैं और इतना मुझे इंतहाई इस चीज पे दुख है कि इन लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल जिस तरह कीड़े मकोड़े होते हैं यूं समझ के इस तरह इग्नोर कर दिया, कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की। आप बोल ही पा रहे हैं किसी चीज को, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारी इमदाद करें, हमें किसी चीज की आपकी हेल्प की जरूरत है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है जो कि बिल्कुल ARY ने बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया है। मुझे खुद इतना शर्मिंदगी फील हो रही है ये बात करते हुए कि इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़ी जगह बहरिया की और जहाँ पे ये हादसा हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से मेरे हस्बैंड को मैंने गाड़ी तक पहुंचाया, मेरी लेग खुद फ्रैक्चर हुई थी। मैंने एक टांग से वहां पे एक आंटी उनकी लेफ्ट लेग कटी हुई, उनकी स्किन लटक रही और मैंने उनका दुपट्टा फाड़ के उनकी मैंने टांग को बांधा। उनका भाई नॉन स्टॉप पीट रहा, एम्बुलेंस एम्बुलेंस, हेल्प करें, हेल्प मी, लेकिन किसी बंदे ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इवन के वहां के गार्ड हजरात कुछ आए तो मैंने कहा प्लीज अंकल काइंडली आप ये हेल्प करेंगे, आप लाइट्स तो ऑन करवा दें, हमें हमारी सारी चीजें चली गई हैं, सेल फोन हमारे गए, DSLR था मेरे भतीजे के पास वो गया, सब कुछ गया है, लेकिन एटलीस्ट लाइट्स ऑन करें, इन लोगों की हेल्प करो। एक आंटी रो रही है, उनके 2-3 बच्चियां थी और वो नॉन स्टॉप हो जा रही कि मेरी बच्चियां हो गई। अब मैं उनको कहूँ कि आप लाइट्स ऑन करें, एटलीस्ट मैं देखूं इस सामान के नीचे आई हुई है, किसी चेयर के नीचे, छोटी बच्चियां हैं वो, तो आप ऑन करें। वो आगे से मुझे कहते हैं जी आप लोगों ने पत्थर मार के तो लाइट्स तोड़ दी। मैंने कहा अंकल खुदा का खौफ करें आप, हम लोग अपनी जान को लाले पड़े हैं, हमारे खुद मौत के मुंह से बचे और किस कंडीशन में, और आप कह रहे हैं कि हमने की है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने फौरन से लाइट्स इसलिए ऑफ की कि कवरेज ना कर सके कोई, वीडियो ना बना सके कोई, जिस कंडीशन में लोग बिलबिला रहे, रो रहे, जैसे ही मतलब वो हुआ मिसमैनेजमेंट, डिसबैलेंस हुआ सीट्स का, तो जब नीचे की तरफ जाना शुरू तो एकदम जी उन्होंने माइक में अनाउंस किया अर्थक्वेक है, प्लीज आप एक दूसरे को सहारा दें और हिम्मत से काम लें। जब हमने लेफ्ट राइट बाकी जगहों पे देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ हम जमीन की तरफ जा रहे थे नीचे, और वो भी हमसे आगे जो लोग थे एक दूसरे के ऊपर वो गिर रहे थे। बच्चे, मैंने बच्चों के सर फटे हुए देखे हैं, एक बिल्कुल यंग मैन थी, उस लड़के का बिल्कुल नोज पूरा कट गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मीडिया उस वक्त कहाँ था। मैं ये चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि फाइन कि अगर मलिक रियाज साहब हैं, बहुत नाइस पर्सन है, वो बहुत गरीबों की वो हेल्प करते हैं, लेकिन हम लोग क्या थे उनकी नजर में कि अगर उनके बहरिया एनक्लेव में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने बड़े बंदे की एक इतने बड़े एरिया में ऐसी जगह पे ये हादसा हुआ, इसका किसी ने कोई नाम नहीं लिया, कोई मीडिया का बंदा नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कहा जाता है जी हमारा आजाद मीडिया है, आजाद मीडिया है। मेरा तो दिल करता है कि मैं ये मीडिया वालों की जान ले लूं। मुझे मेरे हस्बैंड की ये हालत, मेरी ये हालत, मेरे बच्चों का, हम दोनों घर में पड़े हुए, हमारी क्या कंडीशन है, इस चीज का कौन जिम्मेदार है? तो आप क्या कहना चाहेंगी कि मतलब इस खबर को क्यों नशर नहीं किया गया, क्या रीजन हो सकती है इसके पीछे? रीजंस बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है जी कि एशिया के सबसे बड़े बिल्डर मलिक रियाज साहब, तो दैट्स व्हाई ये नशर नहीं की जा रही। कई लोग कह रहे हैं जी कि हाई लेवल का मसला है, ये इसलिए इन्होंने सामने नहीं लाया। कई लोग कह रहे हैं जी चैनल वालों ने आपस में पिछले साल ये आपस में उनका हुआ था कि जी वो अब नेक्स्ट कभी किसी दूसरे चैनल के खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बात बताएं, मैं जस्ट आपसे ये बात पूछ रही हूँ, आप भी एक सहाफी हैं, आपने भी हिम्मत की, आप भी आए, आपने इस चीज को मंजरे आम पे लाने की कोशिश की, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको। बट मुझे ये चीज बताएं कि ARY, जियो, ये बड़े जितने भी चैनल हैं, ये कहाँ थे, ये सो रहे थे, ये किस चीज से डरते हैं? मलिक रियाज से डरते हैं? मलिक रियाज हमसे बात करें, वो हम उससे बात करेंगे। क्या हम लोग कीड़े मकोड़े थे? हमारे बच्चे कीड़े मकोड़े थे? जो लोग मरे हैं वहां, जो लोग, अल्लाह ना करे कि किसी की डेथ हुई हो, पर मेरी जो आंखों से मैंने जो चीज देखी है वो ये थी कि बच्चों के सर फटे हुए, प्रेग्नेंट लेडी, मैंने खुद उसको मैंने सहारा दिया, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसका बच्चा, उसके पेट में उसके बच्चे की डेथ हो चुकी थी, उसकी वो कंडीशन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मतलब किस तरीके से ये लोग कहते हैं कि हम आजाद मीडिया, हम हर बात सामने लाते हैं, क्या बात की ऐसी, क्यों उन्होंने मीडिया पे नहीं लाया? यहाँ पे एक छोटी सी खबर होती है, जियो चला रहा होता है, आज एक लड़की को ये हो गया, आज फलां कत्ल हो गया, आज फलां जगह झगड़ा हो गया, व्हाट द हेल, ये क्या चीज है? ये मुझे मीडिया बताए, इस चीज का आंसर दे। हम हक रखते हैं आप लोगों से ये बात करने का कि क्यों आप लोग हमारी जिंदगियों के साथ खेलते हैं। मुझे, मैं ARY से मैं नहीं कहती कि हम, ठीक है फाइन, वो लोग इंटरटेन करते हैं, उनका ये एक कोई, मैं उस चीज के खिलाफ बात नहीं कर रही कि ठीक है उनका काम था, लेकिन उनका सिटिंग मैनेजमेंट इतना बुरा क्यों था? उन्होंने क्यों इस तरह किया कि हम लोग कीड़े मकोड़े
स्टिल वो हमें यूं बिठा लेंगे सीट पे। अगर वो हमें कुछ लोगों को उनसे फायदा मिलता था तो वो हमसे दुगना कमाते हैं, ऐसा नहीं है। और जस्ट मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, एयर वाई से चाहिए। मैं एयर वाई से इस चीज का आंसर मांगती हूँ। मुझे ये चीज बताएं कि हम क्या चीजें थी आपकी नजर में कि इतना नुकसान देने के बाद, हमें इतना चोट देने के बाद आप लोगों को इतना भी शर्म फील नहीं हुई कि आप लोग मीडिया के सामने आके एक्सक्यूज कर दें? आप एक बार बोल तो देते हमें, हमारे दिल का, शायद हम आपसे, हमारा दिल बहुत बड़े, अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़े दिल दिए हमें, शायद आप लोगों की तरह नहीं है हम लोग चोर। कि मेरी ये गर्दन जो है इस तरफ मूव नहीं करती, स्वेलिंग हुई है, मेरी पूरी बॉडी, इंटरनल सिस्टम मेरा टोटली डैमेज है, मेरी कंडीशन, मेरे बॉडी पे ब्लड जमा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेरी ये बाजू की हालत के क्या बनी हुई है। अब मैं किस किस जगह आपको क्या क्या बताऊं कि मुझे कितनी चोट आई हुई है। मेरे हस्बैंड के यहाँ हम लोग घर पड़े हुए हैं, अपनी अपनी जॉब से फालतू के घर बैठे हुए हैं। आप किस चीज की सजा दी है हमें कि हमें इस तरीके से, मैं ही कहती हूँ कि बुला के वहां पे सब कुछ कर दे और हमें इस तरह एयरवेल भूल गया, हमें इस तरह भूल गए कि जैसे कुछ हुआ नहीं। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि हमारे मुल्क में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कि कोई आता है आपको हमारी जिंदगी के साथ इस तरह खेल जाता है, हमारे बच्चों की जाने जा रही है, टांगें टूट रही है, सर फट रहे हैं उनके, कोई भी आवाज निकालने वाला क्यों? मलक रियाज क्यों? इस वजह से मलक रियाज साहब है, बहुत बड़े साहब है, इस वजह से मीडिया के आपस में, उनके मार्केट में आपस में बात नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोग क्यों पिसे, हम लोग क्यों पिसे? और ARY क्यों उसने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया मीडिया के सामने, एग्री, उन्होंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, लोगों से उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? जस्ट मुझे ये आंसर दें बस। जी बहुत शुक्रिया गुलफाज साहब आपका निरायनों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी जुर्रत की, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, और आपने इतनी हिम्मत की कि आप आए यूं बात करने के लिए, वरना मुझे नहीं लगता कि इस मीडिया में कोई मर्द का बच्चा है जो कि बात कर सके या कोई चीज सामने ला सके, और मुझे इंतहाई दुख है। बस थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।